This is an easy question, huh? Number of sigma and pi bonds. Okay, I think you guys are making the complete structure and uske baad you are counting things. Think in the terms of pi bonds, है ना? Pi bond नाम में ही आपको दिख जाएगा. How many pi bonds are there? Okay, so on the basis of that answer, उस basis में please answer करें. You'll get the answer quickly. No, Anna. Yes, Alia, that is correct. Very good, Alia. Anna, correct. Please see here, guys. It is saying pent 2 in and 4 in. 2 in का क्या मतलब हुआ? 2 in का मतलब हुआ there is a double bond. 4 in का क्या मतलब हुआ? There is one triple bond. In a double bond, we have 1 sigma and 1 pi. In a triple bond, we have 1 sigma and 2 pi bonds. So in total, how many pi bonds do we have? We have 3 pi bonds. Okay, so 3 pi bonds वाला answer कहाँ पे? Only C. Okay, you don't have to even worry about the sigma bonds. Okay, because all the pi bonds are different here. चलिए try this question. Here is the concept ना, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो इसको लिखने मत लगिएगा, पहले आंसर कीजिए and then I will explain this. Oh, no one is getting for this one. क्या हो गया? See, all the bonds here is between carbon and halogen.
Yes, Heather, correct, very good. No, sorry, Heather, नहीं, आपने उल्टा लिख दिया शायद. It is talking about the correct sequence of bond enthalpy, na? So which of the bond is the strongest? The strongest bond will require the highest energy to break. Okay, so you have to see what is the order of the bond enthalpy. Yes, Bond sir. strength का क्या order? Sorry, CO. Heather, what? Yes, sir. The answer will be C. Yeah. So in all of this carbon is in the second period. ठीक है? Carbon कौन से period में होता है? Carbon, ये carbon fluorine है. You have bond between carbon and fluorine. You have bond between carbon and chlorine. You have bond between carbon and bromine, and you have bond between carbon and iodine. So carbon is in the second period. So that is why it will be having 2p orbital. Fluorine will also be have 2p orbital. Here you have 2p in the carbon, but chlorine is 3p. Carbon is again second period, and bromine is 4p. Sorry, second period. Carbon is again second period, and iodine is 5p. So the extent of overlapping will be most, or the highest or the largest overlapping will be between 2p and 2p. Okay. Second period and second period element, they will be having the most extent of overlapping. That is why they will have the highest bond strength. Highest bond strength means it will require higher energy to break it. So C will be the correct option. And as we have seen, the bond strength is inversely proportional to the size of the orbital. अगर size कहाँ पे सबसे छोटा है? The size is smallest in 2p 2p. 2p में छोटा, 3p में बढ़ गया. Then 2p में again छोटा, 4p में और बढ़ गया. 2p में छोटा, 5p में और बढ़ गया. Right? So that is why this is the bond strength 1, 1, 2, 2. क्या लिखा हुआ? These are the shell numbers. ठीक है? These are the shell numbers. There are a few exceptions on this, and that is only because of the lone pair repulsion. Okay, so you have a repulsion. First of all, there is a exception in the halogens. Fluorine should be the most stable because fluorine and fluorine, both of these are what? 2p and 2p. But since here we have the lone pair electrons present, the lone pair electrons, they are going to be what? They are going to repel each other. Okay, and the breaking of this bond will be easier. Okay, so this is, अब ये है जरूर कि it is breaking a rule, but it is a rule and not a law. Rule and law में यही फर्क होता है कि rule has to be broken somewhere. In general ये चीजें होती हैं, and sometimes we have, because हर चीज, if in chemistry the difficult part is that it is a study of very minute things. And छोटी चीजों में क्या हो जाता है, in small things we have to see each and everything. है ना? अब हर चीज तो रूल में आप नहीं लिख सकते कि आपको लोन पेयर भी देखना, ये भी देखना. तो इन जनरल क्या है आपके पास? इन जनरल दिस इज द ट्रेंड, बट व्हेन द lone pair or the electronic repulsion get dominant, so these are the cases where electronic repulsion get dominant, and here we have a different trend. ठीक है? So explanation is present. आप प्लीज इसको लिख लीजिए. And it is not necessary, ऐसा मतलब लोगों ने बना के रख दिया कि सवाल एक्सेप्शन से ही आएगा. ठीक है? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सवाल एक्सेप्शन से ही हो. ये देखिए बिल्कुल जनरल ट्रेंड है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है. ठीक है? यू हैव टू नो बोथ थिंग्स. रूल एक लाइन में आ जाएगा, एंड एक्सेप्शंस देयर आर फ्यू. उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप दिमाग में रखिए तो ज्यादा आसानी होती है. चलिए, प्लीज राइट दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू डन. Done everyone? Yes or no? Please tell me. हाँ जी. Done or still writing? Please let me know ना. चलिए, let me know if you are not done. I will move on. ठीक है. Now these questions are now important. ठीक है? Please see here. In the structure ClF3, the number of lone pair electrons on the central atom. Now, knowing the number of lone pair electrons is not necessary in the perspective कि directly सवाल आएंगे. Number of lone pairs किसमें भी important है? It is important because in Vesper theory you have to know the steric number, which is the number of surrounding atoms plus the number of lone pair electrons. Okay,
So number of lone pair electrons का concept आपको पता होना चाहिए, how to calculate the number of lone pair electrons in the central atom of any structure. So first of all, what you are going to do, you are going to identify the central atom. Central atom here it is chlorine. Then you should know what is the valence electron of chlorine. What you have to do? You have to know the valence electron on central atom. Central atom को क्या पता रहना चाहिए? Valence electron. Now, how will you know the central atom का valence electron? You have to know the group number. If you know the, एक तो चीज है कि क्लोरीन का सीधा बहुत सारे लोगों को याद रहेगा कि it is 7, because halogen का सारे का 7 होता है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप का 6 होता है. So that means it is dependent on the group number. If the group is 17, so number of valence electron will be 7. If the group is 16, the number of valence electron will be 6, 15 में 5, 14 में 4, 13 में 3, and then you have the D block elements. ठीक है? D block elements को आप छोड़िए, आप फिर आ जाइए ग्रुप 2 में. In group 2 you have the valence electron 2, and in group 1 you have valence electron 1. So 1, 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, and 17 में you have 7, and 18 में 8 valence electron. ठीक है? So valence electron on the central atom in the chlorine, it is going to be 7. ठीक है? The next thing that you have to know, it is the number of surrounding atoms. Number of surrounding atoms. Now this is very evident that we have 3 surrounding atoms, that is fluorine. So 3 surrounding atoms we have. And what is the valency? Valency, not valence electron now, no, valency of surrounding atom. Valency of surrounding atom, it is going to be 1. Now in general हम आपको बता देते हैं halogens के क्या होता है. You will only see halogens that is equal to 1, fluorine, bromine, chlorine you will see, or you are going to see oxygen. Oxygen का कितना होता है? Oxygen के valence क्या होता है? 2. ठीक है? Similarly sulfur भी आ सकता है, but sulfur उतनी केस में नहीं आता है. You will mainly see halogens or oxygen or hydrogen you will see. ठीक है? Hydrogen का कितना हो जाएगा फिर? Hydrogen का तो 1 होता है, right? ठीक है? Hydrogen is having valency of 1. Now, using this information, you can calculate the number of lone pair electrons. What we are going to do? Valence electron, ठीक है? Valence electron minus surrounding atom into the valency. ठीक है? This whole thing divided by 2. Number of valence electron is equal to 7 minus surrounding atom is equal to 3. The valency of fluorine is equal to 1. So 3 into 1 will be equal to 3 divided by 2. So 7 minus 3 is equal to 4. 4 divided by 2 will be equal to 2. So the number of lone pair electrons that we have, ठीक है? Pairs कितने हमारे पास? We have 2 pairs. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, How sir. to calculate? ठीक है. Please write this down. Sir, if this question had more than one variety of surrounding atoms, then what will be the formula? उसमें फिर ये करना पड़ेगा आपको कि सराउंडिंग एटम इनटू वैलेंसी, देन दिस माइनस, इसमें आप बाहर से आप ब्रैकेट लिख लीजिए, देन प्लस सराउंडिंग एटम्स एंड वैलेंसी प्लस सराउंडिंग एटम्स एंड वैलेंसी कर लीजिएगा. ठीक है? Okay, sir. I hope everyone is done writing. Yes, sir. ठीक है? Again this question. Amongst the following, which one will have the maximum lone pair electronic repulsion? ठीक है?
लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहाँ पे होगा? वेर यू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स. इफ यू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स, वहीं पे लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा. इफ यू हैव वन लोन पेयर तो रिपल्शन होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि लोन पे रिपल्शन बोला है. If you have two lone pairs, then you will have lone pair repulsion. You have to calculate the number of lone pairs सब में, and जिसमें सबसे ज्यादा होगा वहां पे आप क्या टिक कर दीजिएगा, that will have the maximum lone pair repulsion. Yes, either correct, very good. What about this? Please try कीजिए आप लोग, है ना, ऐसे बैठे मत रहिए. हम आपको बता देते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देते हैं, सब में फ्लोरीन ही है, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. यस, आना करेक्ट, वेरी गुड. So chlorine will have the number of valence electron as 7. Yes, आलिया, वेरी गुड, करेक्ट. आयोडीन में आपके पास हो जाएगा 7. सल्फर में आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6, एंड xenon में you will have number of valence electron as 8. ठीक है, चलिए. इसमें तो अभी जस्ट सॉ दैट इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. IF5 में देखते हैं, तो IF5 में वी हैव 7 - 5 divided by 2, that is equal to how much? 1, right?
So it is having one lone pair electron. Sulfur में वाले में देखते हैं. So sulfur is 6 minus 4 divided by 2. That means it is going to have 1. ठीक है, एक lone pair यहाँ पे. XeF2 में देखिए 8 minus 2 divided by 2. That means it is going to have how much? 6 by 2. That is equal to 3. Here we are going to have 3 lone pair electrons. ठीक है, so this is going to have the maximum lone pair repulsion. Moving on, the concept of Vesper theory and hybridization. Now, in hybridization आपको क्या-क्या चीजें याद रखनी है? Those are these three things and the connection between them. Steric number, what is the hybridization? And if that is a hybridization, what is the electronic geometry? These things are related. Just इतना ही relate करना है आपको. बाकी कुछ भी हो उसको लॉजिकल आप समझ लेंगे, ठीक है? अब 11th क्लास में आप लोगों ने अगर रट्टा मारा तो रट्टे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. एक लोन पे आ गया, 2 लोन पे आया तो क्या करना नहीं करना है. लॉजिकली आप सारे स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है? सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर स्टेरिक नंबर 2, देन sp, स्टेरिक नंबर 3, देन sp2, स्टेरिक नंबर 4, देन sp3. स्टेरिक नंबर 4 में 2 केस होता है, बट इट इज दिस फॉर ये कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है ना. सो दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्सेस, इसको छोड़ दीजिएगा, बट लिख लीजिए फिर भी dsp2 होता है. अगर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ एग्जांपल आ गए, समटाइम्स व्हाट दे डू, नॉर्मल आपको दे विल गिव यू मॉलिक्यूल्स एंड उसमें एक कंपाउंड भी हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है? तो जस्ट राइट इट डाउन, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होगा. एंड देन वी हैव द 5 स्टेरिक नंबर विद sp3d एंड 6 स्टेरिक नंबर विद sp3d2. नाउ व्हेन यू हैव sp, तब एक ही केस है ना, आप यू हैव sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दैट मींस यू विल हैव 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. इट विल बी लीनियर इन शेप, 180 डिग्री में होंगे. अच्छा, जब 3 होंगे तो 3 बैलून कैसे रह सकते? 3 बैलून्स विल बी इन लाइक दिस ऑर्डर. एंड व्हेन यू हैव 4 तो एक ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है? सो ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर लॉजिकल, बट उतने एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे. आई विल आस्क यू टू गाइस टू रिमेंबर दीस थिंग्स, दैट व्हेन इट इज लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल. नाउ लेट अस लुक एट व्हेन वी हैव सम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अगर स्टेरिक नंबर 2 है, व्हाट इज स्टेरिक नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, नथिंग एल्स. इसी वजह से the determination of number of lone pair electrons is very important. You have to know what is the number of lone pair electron as soon as you see the molecule. Number of surrounding atoms आपको दिख ही रहा होगा वहां पे, and you have to also know what is the number of lone pair electrons, ठीक है? Now moving on, if I have steric, अच्छा मान लीजिए steric number 1 है. So when steric number is 1, then there is no concept of structure or electronic geometry या hybridization के बारे में कुछ नहीं जानना है. All of these concepts are why, because आप theoretically determine कर सके what is the structure, है ना? This complete Vesper theory and the BBT Weierstrass theory in terms of hybridization is only present in order to theoretically determine what is the structure of the molecule, what is the shape of the molecule, है ना? If you have only one steric number, that means you have one surrounding atom. एक surrounding atom है आपके पास, तो आपके पास सिर्फ linear structure बन सकता है, that's it. There is no other case, है ना? तो यहाँ पे इस वजह से steric number 2 से स्टार्ट होता है. Now moving on, अब ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को बाद में शायद क्लास के बाद सर steric number 1 तो पढ़ाया नहीं सर ने, है ना? तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. sp hybridization, and in sp hybridization you have only one case in which you will be having a electronic geometry. का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है वेयर आर दी इलेक्ट्रॉन्स. आपने रख दी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास. नाउ इन स्टेरिक नंबर 2 हम सिर्फ उस केस को देखेंगे वेयर वी हैव 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस वी हैव 2 सराउंडिंग एटम्स. नाउ जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहीं पे बॉन्ड होगा, वहीं पे दूसरा एटम होगा, वेयर जहां भी बॉन्ड होगा वहीं पे दूसरा एटम होगा. सो दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. Now, what if one is lone pair electron? तो lone pair electron होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा? लीनियर ही रहेगा, ठीक है? Now, moving on, steric number 3. In steric number 3, the hybridization is sp3 and the electronic geometry is trigonal planar. Trigonal planar का क्या मतलब है? You have A and where are the electrons? Here, here and here, making a triangle, ठीक है? इन points join कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? Triangle मिल जाएगा. Now, let us suppose we have 0 lone pair electrons. That means all the electrons are bonded, है ना? जो भी इलेक्ट्रॉन है वो bonded pair है. So we have B, B and B. Now this becomes trigonal planar. Let us suppose we have a lone pair electron. अब lone pair electron तो आप एक एटम को हटाइए, यहाँ पे आपने lone pair डाल दिया. Now this lone pair, ये किसका lone pair है? ये तो एक का lone pair है, ये कोई अलग से एटम तो है नहीं, ठीक है? That is why when you are talking about the shape of the molecule, electronic geometry, it is going to be a trigonal planar still, because electrons कहाँ पे? They are forming a trigonal planar geometry, electrons. बट जब बात आएगी शेप की, देन यू विल लुक एट ओनली एटम्स. स्ट्रक्चर में किसको देखते हैं? आई ओनली लुक एट एटम्स,
Now, if you look at the atoms, they are making what? They are making a bend shape. ठीक है, क्या बना रहे हैं ये? एक angular shape, bend shape बना रहे हैं, V shape बना रहे हैं. ठीक है. So if you add one lone pair electron, you are going to get a bend shape. Similarly, when I go to the steric number 4, in this case we are having sp3 hybridization with tetrahedral structure. The electronic geometry is tetrahedral. Tetrahedral में क्या करते हैं? There is one which is outside the plane, and then there is one which is inside the plane. When you have zero lone pair of electrons, then you will have B, B, B. The electronic geometry and the shape of the molecule are going to be same. Let us suppose now you have one lone pair electron. आपने क्या बना दिया? एक lone pair electron. So if you add one lone pair electron here, you are going to get a trigonal pyramidal structure. Trigonal, that means base इसका क्या है? Base triangle है, but the shape is pyramidal. ठीक है? वो एक lone pair आपने डाला, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा that it is trigonal pyramidal. अच्छा, what will happen if I add one more lone pair electron? ठीक है, आपने क्या किया? एक और lone pair electron यहाँ से भी हटा दीजिए, यहाँ पे lone pair electron डाल दीजिए. This shape you can see that this is now what? This is now bent shape, V shape, है ना? ये जो lone pair electrons है इसको आप नहीं लिखिएगा. ठीक है? Why you are not writing this? Because these are on carbon atom. अलग से कोई bond नहीं बना रहे. ठीक है? But again, just to show you that it is still tetrahedral in the terms of what? Electronic geometry. It is still tetrahedral. But जैसे ही electronic geometry से हम बात करेंगे shape की, तब आप इसको देखना भूल जाइएगा. ठीक है? You are not looking at those lone pair electrons. You will only look at these atoms. सिर्फ किसको देखेंगे हम लोग? Atoms को देखेंगे. ठीक है? Now moving on. This is tetrahedral. Square planar को रहने दीजिए आप, DSP2 को. Then you have sp3d, which is trigonal bipyramidal. This is a very specific case, very special case in which you have two different types of bonds also. And these two different types of bond will decide कि lone pair जब आएगा तो कहाँ रखाएगा. ठीक है? Where are we going to put the lone pair of electrons? Now, in the case where we have no lone pair electron, then the electronic geometry and the shape of the molecule both are TBP, trigonal bipyramidal. Now, in trigonal bipyramidal, we have two different types of bond. The bonds which are in one plane, these trigonal bonds, is making a triangle. These are known as equatorial bonds. And the ones which are above and below, these are known as axial bonds. These are known as axial bonds. Now, what is the minimum angle between the bonds? What is the minimum angle between the bonds? अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो किस्म के हमारे पास bonds हैं. We have a bond. Just for example, if I talk about these two bonds, this is 120 degree, right? But if I talk about the angle between the axial and the equatorial, then this is what? This is 90 degree. Now, all of you will tell me कि repulsion कहाँ ज़्यादा होगा? 90 degree वाले bond pairs में ज़्यादा होगा या 120 वाले में ज़्यादा होगा? What do you think, guys? Just remember the concept कि if electrons are nearer, the repulsion will be greater. So what do you think? Where are the electrons nearer? In 90 degree or 120 degree? 90. 90 degree में ज़्यादा है, right? So 90 degree is what? It is dominant in terms of repulsion. अगर 90 degree वाले dominant है repulsion में, that means we have to take care and we have to be sensitive about the 90 degree ones कि वहां पे ज़्यादा repulsion ना हो. 90 degree में हम ऐसी चीज को ना डालें जहां पे repulsion ज़्यादा हो. Now, when I look at the equatorial and the axial, ठीक है? तो अच्छा, equatorial को पहले देख लीजिए आप. अभी 120 हम हटा देंगे because 120 का कोई concept ही नहीं है. अगर 90 degree है तो 120 degree को देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? If you have 90 degree का repulsion, because there is more repulsion, तो 120 degree को देखने की जरूरत नहीं है. So I will only be focusing on what 90 degrees का. तो 90 degree में अगर हम देखें, so this blue one is making a 90 degree with all the three equatorial bonds. ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं? All of these are what? At 90 degree. That means the axial one is making 3 90 degree bond angles. What about the equatorial one? Each axial one, हम बात कर रहे हैं किसकी? Each axial one, one axial one, एक axial bond क्या बना रहा है? There are 3 90 degree bond angles. But what about each equatorial one? Each equatorial one is making only 2. एक तो वो ऊपर वाले के साथ 90 degree बना रहा है, एक नीचे वाले के साथ 90 degree बना रहा है. क्या बोल रहे हैं? The equatorial one is making 2 90 degree bond angles. ठीक है? That means अगर हम axial में electrons को रखते हैं, then those electron will be feeling more repulsion और उनकी वजह से repulsion ज़्यादा होगा. ठीक है? If I am putting the electrons at the axial position, then they will be causing more repulsion than the equatorial one. That is why whenever I have to put the lone pair electrons, I will always put the lone pair electron on the equatorial one, because equatorial one are not going to
शो मोर रिपल्शन। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 2 ही 90 डिग्री के बना रहे हैं, एक्सल में रखेंगे तो 3 90 डिग्री का मिलता है। सो देयर विल बी 3 हायर रिपल्शंस, देयर विल बी 3 हायर रिपल्शंस। That is why what I will do, if I have to add a lone pair electron, I will add the lone pair electron here, and the 4 atoms will be placed here. This is going to give you a seesaw type of structure, and that is why when you add one lone pair electron in trigonal bipyramidal, you will get a seesaw structure. ठीक है? अब please remember all of these 3 are same. ठीक है? अब देखने का नजरिया बदल जाएगा अगर हम B को यहाँ पे लिख दें। ठीक है? If I will write the B here and the lone pair is here, ये इट इज स्टिल सीसॉ। वो भले ही आपको दिख नहीं रहा बिकॉज 3D है। ठीक है? कैसे 3D है सर? 3D इस तरह से है कि these electrons are behind the plane और ये हमारे पास क्या, दिस इज above the plane। ठीक है? अब इसको आप रोटेट कीजिएगा, सो these two will be here और ये आपके तो एक सीधे लाइन में है। ठीक है? सिर्फ देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, अदरवाइज नथिंग इज चेंजिंग, इट इज स्टिल सीसॉ, इट इज स्टिल सीसॉ। अब if I have to add one more lone pair electron, then I will add the lone pair electron again in the equatorial position and I will get a T shape। क्या मिल जाएगा हमको? I will get a T shape। Now, if I have to add another lone pair of electron, then I will add the lone pair electron again in the equatorial position and this is going to give me a linear structure। ठीक है? सबसे ज्यादा केसेस इसी में बन जाते हैं एंड यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रखना कहाँ पे, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लीज लेट मी नो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी। अभिनव, आलिया, एना, हैदर एंड इरम। Yes, sir. Yes, understood, no doubt. Iram, Anna, Alia. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Next is octahedral. Now, in octahedral, we have sp3d2. Octahedral is what? It is the electronic geometry when we have steric number 6. That means number of surrounding plus number of lone pair electrons. ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भूल जाइएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलना। ठीक है? तुक्का नहीं मारना। नो, आप सराउंडिंग एटम्स दिख रहा होगा आपको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना बता दिया हमने। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू लर्न दिस। ये बहुत सारे लोगों को आता भी है, बट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मत भूलिएगा निकालना। ठीक है? नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? sp3d2, which is octahedral, and in octahedral if you add one lone pair electron, then it is going to give you square pyramidal. How? Please see. In this case you have these 4 electronic domains, electron domain बोलते हैं because यहाँ पे electron present है, and above and below, so these are in one plane और ये ऊपर है और एक ये नीचे। ठीक है? all of them are 90 degrees angle। ठीक है? किसी में भी कुछ दूसरा एंगल नहीं है, 90 डिग्री का है। हाँ, अपोजिट में 180 डिग्री का एंगल है ना, the one which are opposite to each other, they are having 180 degree, otherwise all of them are having 90 degree का angle। So all of the bonds are same यहाँ पे। It is not as the case of trigonal bipyramidal जहाँ पे अलग अलग angles है। All of the angles in octahedral is what it is, one same, एक ही angle है, that is 90 degree। If I will put an electron, lone pair electron here and the bond pairs atoms are here, so you will see that this is a square shaped base which is making a pyramid on the top. That is why it is known as square pyramidal. Now, if you add one more lone pair, okay, if you add one more lone pair, then you will get a square pyramidal structure। Okay, you will get a square pyramidal structure। This is a square pyramid, square है and it is in one plane। ठीक है? चलिए, that is it, है ना? आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को भी लिख लीजिएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सियल bonds are elongated। ठीक है?
Please let me know if you're done, guys. हाँ guys, done. लिख लिया सबने? Can I get a yes sir, no sir? जिन्होंने नहीं लिखा no sir बोल दे, जिन्होंने लिख लिया yes sir बोल दे please. Yes, sir. Do this question. बट फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले नंबर ऑफ चाहिए, छोड़िए आप यहाँ पे बताइए, आप स्ट्रक्चर छोड़िए, उसको छोड़िए, आप इनके स्ट्रक्चर्स बताइए आप. इसके तो लोन पेयर्स निकल चुके हैं, है ना? टेल मी ClF3 व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? सर एक हमारे सेकंड पास के लिए राउंड. टेबल दिखा देंगे? सॉरी व्हाट हैदर? सर एक सेकंड के लिए वो टेबल पे स्क्रॉल कर लीजिए, मैं लास्ट वाला लिखना भूल गया था. अच्छा अच्छा लिखते हैं. थैंक यू सर, हो गया. इन सवालों को देखिए आप. सो हियर वी हैव व्हाट, आपके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं and you have the surrounding atom, that means steric number will be equal to 5. 5 steric number है आपके पास, तो क्या हो जाएगा? sp3d. sp3d में आपके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है. so what will be the shape? ट्रायगोनल What? पिरामिडल. नहीं, that is electronic geometry. हम शेप की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री. यही तो डिफरेंस हम बता रहे थे. आपके पास sp3d है एंड देन यू हैव टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? शेप क्या हो जाएगा? टी शेप. टी शेप. वेरी गुड. ठीक है. IF5 यू हैव वन लोन पेयर प्लस 5 बॉन्डिंग, है ना, प्लस 5 सराउंडिंग एटम्स. क्या हो गया? 6 हो गया. sp3d2. ठीक है, sp3d2 हो गया. एंड देन व्हाट डू वी हैव? ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आता है तो क्या लिखते हैं? व्हाट इज द शेप? स्क्वायर sp3d2 पिरामिडल. ऑक्टाहेड्रल. हाँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल. SF4 में व्हाट डू वी हैव? वी हैव वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस वी हैव 4 बॉन्डिंग पेयर्स. ये 5 हो गया. sp3d. चलिए आंसर प्लीज चैट में लिखिएगा आप लोग. आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन बिकॉज टेबल है आपके पास, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, राइट द आंसर इन चैट. चैट में, नॉट, डोंट से द आंसर. ओके, चैट में बताइएगा. यस, करेक्ट हैदर. वेरी गुड. वेटिंग फॉर अदर्स. अभिनव, आलिया, अन्ना एंड इरम.
Send your answers to Salim, okay? Yes, Alia, very good, correct. What about others? Abhinav, Anna, and Iram, are you stuck? Please let me know if you are stuck, guys. Yes, Iram and Anna, tell me, are you stuck? Anna, are you stuck? Yes, sir. ठीक है. SF4 में आप बताइए. Tell me, in SF4 you have got the hybridization, yes or no? Tell me, Iram. Iram, can you please keep your mic on? Yes, you have got the hybridization as SP. Keep your mic on, please. Yeah, you have got the hybridization as SP3D2. SP3D. So what is the electronic geometry? Yes, Iram, what is the electronic geometry? Table देख के बताइए. For SP3D. Yes, Iram, you can't say that. What is the electronic geometry, Iram? You have not noted down the table or what? इतना टाइम नहीं रहता है ना. जल्दी जल्दी आंसर करें. यस नो में आंसर पूछ रहे हैं. यस इरम. इरम, कैन यू हियर मी? नो, नेट इनका ठीक नहीं है. व्हाट अबाउट यू, Anna? Got the answer, Anna? Chat में बताइए if your net is not good. Yeah, sir, it is now okay now. A trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal क्या है? Electronic geometry है, right? Yes, sir. If we add one lone pair electron तो क्या मिल जाएगा हमको? एक lone pair electron है ना? Yes, sir. Seesaw shape. Piece of it. And what about this one, XEF2? We have 3 lone pairs plus 2. That means it's still 5. SP3D. ठीक है. And if you have 2 electrons in trigonal bipyramidal, sorry, you have 3 lone pair electrons in trigonal bipyramidal, तो आपको क्या मिल जाएगा? लीनियर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. Do this question quickly. Not more than 2 minutes should be required for this question. ठीक है, जल्दी कीजिए. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. इस सवाल को कीजिए. देखिए इरम, इट इज वेरी सिंपल. आपको हम स्टेप्स बता दे रहे हैं, आप बताइए कौन से स्टेप में आपको डिफिकल्टी आ रही है.
ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिखता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकंड आपको डिटरमाइन करना है व्हाट इज द स्टेरिक नंबर। थर्ड आपको डिटरमाइन करना व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या फिर हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री साथ साथ। यस एरम टेल मी। नहीं कुछ नहीं, ठीक है। फोर्थ आप देखिएगा, look at the lone pair electrons and determine shape on the basis of lone pair electrons। अब ये बताइए कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है आपको, कि सर हम 2 तक तो पहुंच गए, थर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा, या थर्ड हम पहुंच गए सर फोर्थ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, anyone if you are having a doubt you will let me know in what step you are having difficulty। Okay, sir. If the formula for lone pair was valence electron minus surrounding atom into valency, right? हाँ, तो वैलेंसी सब में तो 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, फ्लोरीन का 1 होता है, सीएल का 1 होता है, Yes, sir. और ऑक्सीजन जब आएगा तब आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाती है। Then how will we calculate lone pairs in calculations where fractions will come like 5/2? नहीं आएगा वैसे ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा वैसे। Okay.
Okay, we have got some answer. Okay, Alia, let me see. अच्छा, CLF3 का तो अभी हमने देख लिया था. अच्छा, Heather is also getting the same answer. Okay. देखिए, once again I am saying one thing that एक बार आप ना ऑप्शंस को गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है. तो ऑप्शन ए में आपके पास ए वाले क्या है, 3 2 3 4, ठीक है. Here we have 4 3 4 3. Here we have 1 4 2 1. Here we have 2 1 1 2, ठीक है. आप सबसे पहले देखिए ए को, ठीक है. डिसाइड फॉर ए. ए में आपको क्या मिल जाएगा, आइदर अगर आपके पास आपने ए सही निकाल लिया तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकता है. 1 वाला कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो क्या हो सकता है, 2 3 4 में से कोई हो सकता है. अगर 3 हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है. अब उसके बाद देखिए बी सेम है. अब ए के बाद आपको क्या देखना है, ए के बाद आपको देखना है सी, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक एट ए एंड देन यू विल लुक एट सी, ठीक है. सबसे पहला ए देखते हैं. NH3. NH3 तो याद रहना चाहिए हमको, बोलेंगे 3 चीज का तो आपको याद रहना चाहिए, CH4 NH3 H2O, ये तीनों याद रहना चाहिए. दिस इज टेट्राहेड्रल. एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक लोन पे डाला आपने, ट्राइगोनल पिरामिडल बन गया. एक और लोन पे डाला आपने, क्या बन गया, बेंट बन गया, ठीक है. ये याद रहना चाहिए आपको. दूसरा आपको याद रहना चाहिए PCl5, ठीक है. PCl5 का TBP, ये बिल्कुल रटा रहना चाहिए, PCl5 का TBP. और SF6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है. तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल रटी रहनी चाहिए, बेस केसेस है बिल्कुल. ये तीनों तो बिल्कुल रटा रहना चाहिए आपको, ठीक है. NH3 is directly what? NH3 में आपके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है and we have 3 surrounding atoms, so tetrahedral. and एक लोन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पिरामिडल. तो ए का हो गया आपके पास 2, बाई पिरामिडल, ये सॉरी ट्रायंगल पिरामिडल कहाँ है, ए का हो जाएगा 3, है ना. तो ए का 3 आपके पास 2 केसेस है. नाउ आई विल लुक एट सी. PCl5 का क्या होता है, ट्रायंगल बाई पिरामिडल, TPP. ट्रायंगल बाई पिरामिडल कौन सा है, A3 एंड सी का क्या होना चाहिए, 2. A3 एंड C2 इज ऑन सी, ठीक है. सारे ऑप्शन आपको देखने की जरूरत है नहीं, 2 ऑप्शन में आपने टिक कर दिया आंसर, ठीक है. एक अगर आप बी देखते हैं तो बी में यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, तो बी देखने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है. नॉट नेसेसरी. अच्छा, अब बाकी देख लेते हैं. CLF3 तो अभी हम लोगों ने देखा था. CLF3 इज व्हाट, CLF3 इज गोइंग टू बी टी शेप, ठीक है. CLF3 तो हमने देख लिया था. व्हाट अबाउट BRF5? BRF5 इज व्हाट, BRF5 इज वेरी सिमिलर टू IF5, ठीक है. इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल. क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 1, प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6. ऑक्टाहेड्रल में आप एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. इसको तुरंत कीजिए. इसमें तो आपको 1 मिनट लगना चाहिए. वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस बिफोर, है ना. इसमें बस आपको 1 मिनट लगना चाहिए ABCD में. आंसर जल्दी आना चाहिए इसका. एक आंसर आया. ओके, आलिया हैज गिवन द आंसर. लेट मी सी. हाँ, सही लग रहा है. बी भी आपका सही है. सी भी सही है. वेरी गुड. इरम भी सही, हैदर भी सही. वेरी गुड गाइस. अभिनव, आप आंसर मतलब साले में भेज रहे हैं, कहीं और भेज रहे हैं, आपका आंसर नहीं आ रहा है. अभिनव, व्हाट हैपेंड?
यस अभिनव, हेलो, एम आई ऑडिबल? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। ये देखिए बहुत ही आसान सवाल आया था एक बार कि BF3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो BF3 में आपके पास बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 0, बिकॉज बोरॉन कौन सा है? बोरोन इलेक्ट्रॉन 13th ग्रुप, 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 सराउंडिंग एटम्स, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो BF3 है आपके पास, सराउंडिंग एटम इज इक्वल टू 3, तो आपके पास हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, sp2 वाला केस कौन सा है? sp2 का A केस है और sp2 का D केस है। अब इन्होंने खुद ही बोला है कि इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इसके सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकते। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ऑक्टेट कंप्लीट होता, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड ऐसे भी इफ यू हैव 3 बॉन्ड पेयर्स तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना, बोरॉन एंड 3 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6, you have how many? 6 electrons only, electron deficient। चलिए मूविंग ऑन। अब आप यहाँ पे ना कुछ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें नॉन पोलर के बारे में और पोलर के बारे में। ठीक है, इफ यू आर हैविंग सेम सराउंडिंग एटम्स, तो क्या हो? सराउंडिंग एटम्स क्या हो? सेम सराउंडिंग एटम जब सेम होंगे, देन इन दैट केस इफ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, rather I should say if there is 0 lone pair electron, then molecule will be non-polar। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, इट इज ट्रू एवरीवेयर। अगर इफ यू हैव सेम सराउंडिंग एटम्स विद 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, किसमें 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, सराउंडिंग में सेंट्रल में अगर आपके पास 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तब आपके पास क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी नॉन-पोलर। ठीक है, जहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तब आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के केस में इट कैन बी पोलर एंड इट कैन बी नॉन पोलर आल्सो। ओके, हाँ, अब दूसरी चीज, इफ यू हैव डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स तो वहां पे नॉन क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स तब तो प्योरली वो पोलर हो ही जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव डिफरेंट सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी पोलर। अच्छा, इन दिस केस आप देखिए यहाँ पे NO2 है, NO2 में आपके पास क्या होगा? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, बिकॉज NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एक डेटिव बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, एंड यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर। ठीक है, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है आपके पास? इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी पोलर। POCl3 में P डबल बॉन्ड O, अब बाकी आपके पास क्या हो जाएंगे? क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी पोलर, बिकॉज सराउंडिंग एटम अलग अलग है। डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज व्हाई द डाइपोल मोमेंट विल एक्सिस्ट। CH2O क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड O, एंड देन यू हैव डिफरेंट हाइड्रोजन्स। अच्छा, इस केस में भी क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है? हियर यू आर हैविंग अ डाइपोल मोमेंट। तो बचा क्या केस? क्या? SbCl5 का। SbCl5 में यू विल हैव, देखिए, Cl 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 एंड Cl। एंटीमनी जो है दैट इज इन द ग्रुप ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर फॉर्मिंग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे क्या हो गए? सेम हो गए, एंड देयर इज 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सो डी विल बी द केस। NO2 क्यों नहीं है? बिकॉज NO2 हैज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेम तरीके से इसको कीजिएगा। I hope you've taken the screenshot. Now let us move on to this question. Correct order of bond angles in the following compounds or species. ठीक है, बॉन्ड एंगल इसमें सबसे पहले आप क्या देखिएगा? You will see the hybridization. Now, as the hybridization increases, hybridization देखिए या फिर आप steric number देखिए। ठीक है, both the things are fine. Steric number देखिए चाहे आप hybridization देखिए। जैसे जैसे आपके पास क्या होगा? steric number बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे steric number बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। बॉन्ड एंगल विल स्टार्ट टू डिक्रीज। जब sp था तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए? स्टेरिक नंबर क्या था? 2 था, 180 है। 3 में 120 हो गया, 4 में क्या हो गया? 109 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा, इफ स्टेरिक नंबर इंक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। देन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH4 में देयर इज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे बॉन्ड एंगल इट इज गोइंग टू बी प्योरली 109.5 डिग्रीज।
या फिर 109 and 28 minutes degrees and 28 minutes. NH3 के केस में you have nitrogen and these 3 hydrogens. These all hydrogens are what repelled by the lone pair electron. ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इसको और become closer. क्या हो जाओ, नजदीक नजदीक चले जाओ. And if they will become closer, the angle is going to decrease. ठीक है, तो number of lone pair और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो नंबर ऑफ क्या देखेंगे हम लोग, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे. तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा. ठीक है. टाइप ऑफ सेंट्रल एटम ये देखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ सेंट्रल एटम में इफ द हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ ये दोनों जब सेम हो तब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम को देखिए. व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम? बिकॉज इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज हाई, अगर जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का हाई है ना, तो नाइट्रोजन क्या करेगा आपको, नाइट्रोजन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे तो दे आर स्पेसिफिकली नियर, और नजदीक रहने की वजह से क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल को बढ़ा दिया जाएगा. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, बॉन्ड एंगल को बढ़ा दिया जाएगा. ठीक है. सो इफ यू हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल विल बी हायर. और अगर आपके पास देन अगर ये भी सेम है तो फिर आप क्या देखिएगा, टाइप ऑफ बॉन्डेड एटम देखिएगा, सराउंडिंग एटम देखिएगा. सराउंडिंग एटम में क्या होगा, साइज को देखिए. बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉन्डेड स्पीशीज. ठीक है, साइज ऑफ द बॉन्डेड स्पीशीज. चलिए मूविंग ऑन. इन दिस केस अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपके पास, CO2 इज sp हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. NH3 आपके पास क्या है, NH3 का स्टेरिक नंबर है क्या, NH3 आपके पास है टेट्राहेड्रल, sp3 है. और H2O ये भी sp3 है. और NH4 पॉजिटिव, दिस इज आल्सो sp3. ठीक है, NH4 पॉजिटिव ये भी क्या है आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. अच्छा, अब इसमें तो हमको पता चल गया कि sp का सबसे ज्यादा होगा. sp का ज्यादा यानी कि CO2 के ज्यादा वाले 3 केस है. अब उसके बाद किसका होगा, आफ्टर CO2 किसका होना चाहिए, आफ्टर CO2 होना चाहिए जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ज्यादा होता है. तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. दैट मींस लीस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर किसके पास है, तो लीस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हमारे पास है NH4 पॉजिटिव के पास, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. CO2, उसके बाद होगा NH4 पॉजिटिव, उसके बाद होगा NH3 जहां पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होगा H2 जहां पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. प्लीज नोट दिस डाउन. MOT के लिए बहुत कम टाइम बचा है. Done everyone, yes or no, please tell me. Right, next. Molecular orbital theory. In molecular orbital theory, the basic idea about molecular orbital theory is that scientists said that where are the electrons in an atom? The answer was atomic orbital. So where will be the electrons in the molecule? They said molecular orbital. And molecular orbital बोलता है कि overlapping कुछ नहीं होता है, mixing of orbital होता है. The orbitals, atomic orbital they mix and then they make molecular orbital. And अगर 2 atomic orbital मिल रहे हैं तो 2 molecular orbital बनाते हैं and so on. Now in molecular orbital theory, 2 आपको केस याद रखने पड़ेंगे. If you have to give the, अगर आपको किसी भी चीज का molecular orbital theory के हिसाब से आंसर करना है, then you have to know what is the molecular orbital configuration. जैसे इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे molecular configuration आपको पता होना चाहिए. Where are the electrons, कितने electrons है सब जगह. In order to know the electronic configuration in the molecular orbital, you have to know the what is the order of molecular orbital in terms of energy, because electrons of Bohr principle abhi bhi follow karega. It is going to go in the least energy orbital first of all. Now in the case of order of energies of molecular orbitals, उसमें 2 ऑर्डर है. एक वो ऑर्डर जब आपके पास n क्या हो, number of electron is what, it is less than 14 or equal to 14 in the neutral state. अब जैसे मान लीजिए कोई N2 पॉजिटिव लिख रहा है या फिर N2 नेगेटिव लिख रहा है, N2 नेगेटिव लिख रहा है तब ठीक है, N2 नेगेटिव में क्या जाएगा, 15 आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नाइट्रोजन हैज
7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन विल हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से 15 इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से केस में जाएगा? ये जाएगा N14 में, बिकॉज वी हैव टू सी द न्यूट्रल वन। आप न्यूट्रल के हिसाब से देखिए कि क्या है, whether it is 14 और 15, एंड उसके बाद आप उस केस में लेके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज लुक एट द न्यूट्रल एटम। कोई भी चीज आपको दिया जाए, NO पॉजिटिव दे दिया जाए, तो भी आप न्यूट्रल एटम को देख के वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे। चलिए, सो हाउ विल यू रिमेंबर, सी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, 2s, 2s स्टार, यहाँ तक ठीक है। Essentially it should be sigma 2pz, but because of due to sp mixing, इसको याद रखिएगा, due to sp mixing the order changes and first we have pi orbitals। pi orbitals को पहले होना नहीं चाहिए था, because sigma की एनर्जी क्या होती है? sigma की एनर्जी कम होती है, sigma ज्यादा स्टेबल होता है, that is why it is having lower energy। but because of sp mixing what happens? pi 2px and pi 2py की एनर्जी कम होती है, किससे? sigma 2pz की, in the case of when electrons is less than 14 or equal to 14। and then we have sigma 2pz, and after that we have pi star 2px, pi star 2py, and then sigma star 2pz। how will you remember this? आप ऐसे याद रखिएगा, n is equal to 14 is what? It is an even number। even number में 2 वाला पहले आएगा। pi pi दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो these are two different orbitals which are having same energy। two different orbital having same energy will come first, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो 2 1 2 1 वाला केस आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव n is greater than 14। इन दैट केस आप याद रखिएगा n कितना हो सकता है? 15 हो सकता है, 15 से और या 15 से ज्यादा। तो दिस इज ऑड केस, और ऑड केस में कौन पहले आएगा? जो सिंगल है सिग्मा 2pz वो पहले आएगा, पाई वाले बाद में आएगा, ठीक है। 2p के केस में ये दिक्कत होगी, 2p में पाई वाला पहले आएगा या सिग्मा पहले आएगा? तो जब इवन है तो पाई पहले आएगा, ऑड है तो सिग्मा पहले आएगा। उसको आप याद कर लीजिए किस तरह से। यहाँ पे देयर इज नो sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग क्या होती है इसको समझाने के लिए तो आधा घंटा इसमें लग जाएगा, बट याद रखिएगा ड्यू टू sp मिक्सिंग होता है, यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होता। इतनी चीजें याद रखिए, ठीक है। चलिए, प्लीज नोट दिस डाउन क्विकली, प्लीज नोट दिस डाउन क्विकली। आई विल गिव यू 1 minute फॉर दिस। Sir, what's that star for? There is anti bonding ना, वो anti bonding molecular orbital है। ये bonding molecular orbitals है, whatever which is without star, and the one star ones are anti bonding, ठीक है। Can you explain the difference between them? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? जब मिक्सिंग होती है तो सेम फेज में मिक्सिंग होती है। फॉर एग्जांपल, इफ द s ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग, तो s ये दोनों सेम फेज में है, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। फिजिक्स का टर्म होता है ना, वेव्स को अगर आप ये कीजिएगा, दो वेव्स है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, तो इन दोनों का फेज सेम है, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में, फिर नेगेटिव नेगेटिव साथ में, तो इनको जब अब ऐड करेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके इनके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे। बट व्हेन यू हैव एक आपके पास जब अपोजिट फेज होगा, तब यहाँ पे क्या होगा? दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल कैंसल आउट। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके कुछ नहीं होगा। तो ये जो ऑल ऑफ यू नो ना कि जो आपके पास ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें वेव नेचर होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट कंसीडर्स द वेव नेचर, एंड इट सेज दैट अगर आप s ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, 50% चांसेस है क्या हो? पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स हो। 50% चांसेस आपके पास क्या हो जाए? सेम फेज में हो या फिर अपोजिट फेज में। दो ही केसेस हो सकते हैं, सेम फेज या फिर अपोजिट फेज में वो लोग क्या हो? मिक्स हो जाए। अगर सेम फेज में मिक्स हो रहे हैं, दे विल गिव यू 50% ऑफ द s ऑर्बिटल विल बी मिक्सिंग इन द सेम फेज, 50% मिक्स करेंगे किसमें? अपोजिट फेज में। तो जब 50% अपोजिट फेज में मिक्स करेंगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग, और वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। सो एंटी बॉन्डिंग इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स के बीच में नहीं रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवे फ्रॉम द एटम्स उस केस में। चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द ऑर्डर। मूविंग ऑन। अब ये जो केसेस है ना, नाइट्रोजन का N2 पॉजिटिव, N2 एंड N2 नेगेटिव, दीज आर इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपको, ठीक है। तो प्लीज इसको देखेंगे। सबसे पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम इट इज इक्वल टू हाउ मच? 14। 14 के केस में देखिए, आप लोग ना आंसर नहीं करते जल्दी। हम अभी पूछेंगे केस 1 होगा या केस 2 होगा, बताइए। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14, केस 1 या केस 2? केस 1, ठीक है। केस 1 में बताइए, केस 1 क्या है? इवन वाला है या ऑड वाला है? Even.
इवन वाला है तो पाई पहले आएगा, सिग्मा पहले आएगा। पाई। तो ये जो आंसर करेगा उसको याद रहेगा, ठीक है। अब यही दिक्कत हो जाती है आप लोगों की, आप लोग आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट आलिया, अन्ना, इरम, निम्रा हैज जॉइंड राइट नाउ, अभिनव, ठीक है। सो प्लीज आंसर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो तुरंत आप लोग ये होना चाहिए, लिखने में मत रहिए ज्यादा, ठीक है, राइट नाउ। ये तो नोट्स आप बोलिएगा, हम आपको भेज देंगे। हाजिर जनरली ही आस्क आस्क आफ्टर द क्लास कि सर नोट्स भेज दीजिए, हम उसको नोट भेज देते हैं, ठीक है। तो लिखने में प्लीज बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, याद रखने में फोकस कीजिए। याद कैसे रहेगा, हम पूछेंगे आप बोल रहे हैं, ठीक है। जो नीट में एग्जाम होने वाला है वो कंपटीशन इस चीज का नहीं कि कौन कितना ज्यादा लिख सकता है, कौन कितना ज्यादा नोट बना सकता है ना, कौन कितना ज्यादा छाप सकता है। वो है किसका, रिटेंशन का। आप कितनी ज्यादा कितनी चीजें क्या कर रहे हैं अपने माइंड से आगे प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं, कॉर्टेक्स में ला रहे हैं, और आप उस चीज को बोल रहे हैं, है ना। तो आपको तो जो जो तो बायो के स्टूडेंट्स तो आप लोग हैं ही, है ना, तो आप लोगों को तो ज्यादा अच्छे से पता होगा कि जो ब्रेन होता है उसमें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी में लाना रहता है, फिर आप क्या यहाँ पे ब्रेन, दिस इज द वर्किंग ब्रेन, राइट। वो पाथ कौन डिसाइड कर, वो पाथ जब तक आपका बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस नहीं होगा ब्रेन को, तो आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। इट रेयरली हैपेंस कि आपको अपना नाम नहीं याद रहता, आपको अपने पेरेंट्स का नाम नहीं याद रहता, या फिर आपको किसी जानने वाले रिलेटिव्स का जो ज्यादातर मिलता है उसका नाम नहीं याद रहता, ठीक है। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि आप नाम भूलिएगा किसी का, ऐसे लोगों का। बट कोई आदमी जो आपको 5-6 साल बाद मिल रहा है तो उसका नाम आपने, उसका नाम है आपके दिमाग में, ऐसा नहीं कि नहीं है दिमाग में, इट इज देयर, यू हैव मेमोराइज्ड इट। आप रिटेन ही नहीं कर पाइएगा भाई, बस ये पाथ जो है ना यहाँ से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक का, ये आपने पाथ बना के ही नहीं रखा हुआ है। अनटिल एंड अनलेस ये रिटेंशन वाला पाथ होगा, ठीक है, अनटिल अनलेस यू हैव दिस रिटेंशन वाला पाथ वेरी ब्रॉड और एकदम डीप पाथ हो, तब तक आपको चीजें जल्दी याद नहीं आती। लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपका वर्किंग ब्रेन है, आप इसको जब भेज रहे हैं सिर्फ कहाँ पे, सिर्फ भेजिए आप, ठीक है। तो भेजने से कुछ नहीं होगा, ये वाला पाथ आपका ठीक है एक्टिवेटेड है, आप बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं चीजों को, लेकिन रिटेन भी तो होना चाहिए। तो रिटेंशन वाले पाथ को आपको ज्यादा एक्टिवेट कीजिए। इसी वजह से हम क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन करने में क्या होगा, क्वेश्चन करने में आपको जो चीज आती है उसको आप खींच के ला रहे हैं दिमाग से, ठीक है। तो मोर यू प्रैक्टिस ऑन दैट, उतना ज्यादा जल्दी आप लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज वर्क ऑन दैट। Now, moving on, we have 14 electrons to fill in the molecular orbital diagram. We have 14 electrons to fill in the molecular orbital diagram. I will start, the rule says that we have to start with the lowest energy possible. सबसे lowest energy कहाँ पे है? It is in sigma 1s. So I filled 2 electrons in sigma 1s. Then we have the energy in sigma 1s star, then in the sigma 2s, then in sigma 2s star, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? We have 4 orbitals filled, that means 8 electrons are filled. अब पाई में प्लीज ध्यान रखिएगा कैसे भरना रहता है, 1 electron here and 1 electron here. We are following the Hund's rule of maximum multiplicity. क्या हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है? Yes, because we have filled 8 plus 2, that is 10 electrons. 11th electron will go here, 12th electron will go here, 13th electron here, and 14th electron is here. ठीक है, so this is how you are going to fill the electrons in the molecular orbital diagram of nitrogen. Now here we have, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, अगर लिखने के लिए आए तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2pxy2, पाई एंड देन सिग्मा 2pz2, ठीक है। तो इस तरह से जैसे 1s2 2p3 लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p7, इस तरह से सेम केस आपको यहाँ पे लिखना है। N2 में आप देखिए सबसे पहली चीज आ रही है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर दो किस्म के हो सकते हैं। इफ यू हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस केस में होगा ये पैरामैग्नेटिक, एंड पैरामैग्नेटिक आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट, दे डू नॉट, क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स के होने से उसमें कुछ बिहेवियर में चेंज नहीं आता। दे डू नॉट चेंज देयर बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक, हमने उल्टा ही लिख दिया, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक एक्सटर्नल इसमें चेंज नहीं करता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक उल्टा ही लिख दिया हमने। इफ यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब इस केस में क्या होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इट शोज अट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी चीज अगर चिपक रहा है तो उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। नाउ N2 की अगर हम बात करें तो इन दैट केस वी हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट विल बी डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिस इज बॉन्डिंग, तो 2 4 5 6 7 8 और 9 10, वी हैव 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
बाकी बचे 4 वो एंटी बॉन्डिंग में होंगे बिकॉज टोटल तो हमारे पास 14 ही है। बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिएगा प्लीज, बॉन्ड ऑर्डर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग 10 है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग 4 है हमारे पास, 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। नाउ एज सून एज यू राइट 3 दैट मींस वेस्पर के केस में और जो ट्रेडिशनल और जो ओल्ड थ्योरी है उसके हिसाब से क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। सो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में अगर 3 बॉन्ड है दैट मींस नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट, है ना। अगर बॉन्ड 0 रहता तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, तो N2 थोड़ी ना है, वो N अलग है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, बॉन्ड ऑर्डर शुड बी ग्रेटर देन 0। एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0, देन हम बोलेंगे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स, ठीक है। अच्छा, N2 प्लस के केस में अगर हम आ जाए तो N2 प्लस के केस में वी आर गोइंग टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी N2। N2 से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, N2 से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया एंड वी गॉट अ पैरामैग्नेटिक केस, है ना, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में हमने एक कम किया तो इट विल बी 9, एंटी बॉन्डिंग अभी भी सेम है तो इट विल बी 4। अब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 एंड स्टिल वी हैव बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 तो इट विल एग्जिस्ट। N2 नेगेटिव के केस में क्या होगा, N2 आप पहले बनाइए, दिस इज N2, अब N2 में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। नाउ इन दिस केस आल्सो इट इज पैरामैग्नेटिक, और आपने जब एंड व्हेन यू हैव एडेड एन इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट इज स्टिल 10, एंटी बॉन्डिंग बढ़ जा रहा है 5 हो जा रहा है एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 2.5, 10 minus 5 इक्वल टू 2.5 एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू एग्जिस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ के केस में प्लीज याद रखिएगा, bond length this will be inversely proportional to the bond order, ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड ऑर्डर के, एंड इट इज आल्सो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तब इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि N2 का क्या है बॉन्ड ऑर्डर, एक सेकंड, it will be directly proportional to anti bonding, not inversely, it will be directly proportional to anti bonding in AB. तो बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 will be smallest, उसके बाद किसका होगा, अब N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में अगर हम देखे बात करें तो N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में क्या है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम, तब हम किसको देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग को देखेंगे, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग को देखें तो सब क्या है, 5 है और यहाँ पे 4 है। N2 के बाद किसका आएगा, N2 पॉजिटिव का आएगा और उससे ज्यादा किसका आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग की वजह से N2 नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिफरेंट बोल सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है उसके अपोजिट कर दीजिए, N2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद N2 पॉजिटिव, उसके बाद N2 नेगेटिव, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल हैव द सेम ऑर्डर, N2 पॉजिटिव एंड देन N2 नेगेटिव, ठीक। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, उसको लिखिएगा मत अभी, वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Moving on, oxygen के we have 5 ions, O2 positive, 2 positive, negative and 2 negative, ठीक है। O2 में होते हैं आपके पास 16 electrons, so obviously it is going to be the case of case 2 जहाँ पे n is what greater than 14, उस केस में क्या होगा, सिंगल वाला पहले आएगा, so that is why sigma 2pz पहले। Now first of all I am going to fill for the 16 electrons in the O2, O2 को सबसे पहले हम करेंगे fill। O2 को fill करने के लिए आपको चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या आपके पास 15 एंड 16 इस तरह से, ठीक है, 15 एंड 16। तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप देख रहे हैं, इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। क्या हो गया ये, पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे आपके पास, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग हो गया आपके पास 2 4 6 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो बॉन्डिंग हमारे पास अभी भी कितने हैं, बॉन्डिंग इज 10, एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे 6 बिकॉज टोटल 16 थे। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4/2 2 हो जाएगा। एग्जिस्टेंस होगी या इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाया, ठीक है, O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन हटाया
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी स्टिल पैरामैग्नेटिक। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी 10। एंटी बॉन्डिंग में से एक कम हो गया, क्या कितना हो गया है, 15 हो चुका है, ठीक है, इट इज नाउ 5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के हो जाएगा 2.5। एग्जिस्ट करेगा, हाँ एग्जिस्ट करेगा। अगर हम O2 2 पॉजिटिव के बारे में बात करें तो इट इज गोइंग टू बी नाउ डायमैग्नेटिक। ये क्या हो चुका है, डायमैग्नेटिक हो चुका है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इट इज स्टिल सेम, एंटी बॉन्डिंग कम होकर कितना हो चुका है, अब इट इज नाउ 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एग्जिस्ट करेगा, हाँ एग्जिस्ट करेगा। अब इसके उल्टा रिवर्स ऑर्डर चल जाएगा आपका। O2 पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। O2 को आपने बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, O2 1 नेगेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो इट इज स्टिल पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में आपने कोई चेंज नहीं किया है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज स्टिल द सेम। वी हैव 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बट एंटी बॉन्डिंग बढ़ के कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। एंटी बॉन्डिंग बढ़ के 7 हो चुका है, दैट मींस यू विल हैव 7। ये 10 ही है, 6 था, ये 7 हो जाएगा, है ना। हाँ, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो चुका है यहाँ पे, 1.5 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.5। एग्जिस्ट करेगा, हाँ एग्जिस्ट करेगा। आपने डाला एक और इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन डाला आपने 2 नेगेटिव के लिए। इन दिस केस नाउ यू कैन सी दैट इट इज नाउ डायमैग्नेटिक अगेन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज स्टिल 10, एंटी बॉन्डिंग बन चुका है 8, नंबर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और अगर हम एक्जिस्टेंस की बात करें तो इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। सो यू विल हैव O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2, उसके बाद O2 पॉजिटिव, एंड उसके बाद O2 2 पॉजिटिव। अब ध्यान रखिएगा, O2 में इफ यू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। O2 में इफ यू ऐड इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। इस केस को आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डर, तो O2 2 नेगेटिव का सबसे कम आसानी से टूट जाएगा, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2, उसके बाद O2 पॉजिटिव, उसके बाद O2 2 पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो इट विल बी द सेम, O2 2 नेगेटिव, then you will have O2 negative, then you will have O2, then you will have O2 positive, and then you will have O2 2 positive. ठीक है, again take a screenshot for this. ठीक है, तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3। ठीक है, 5 3 8 मेन जो आयंस हैं और जो एटम्स है उनका आपने कर लिया है। बाकी बचा हीलियम वगैरह का, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा और उसके बाद सीधा सीधे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उतनी चिंता करने की बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे ना, अब हम 1 सवाल, 2 सवाल है, 3 सवाल है, 4 सवाल है। ठीक है, 4 और 1 5 सवाल है। ठीक है, इसमें हम ना 2 सवाल आपको कराते हैं, एक कराते हैं आपको, ये सवाल हम नहीं कराते। ठीक है, इसमें O2 2 नेगेटिव वगैरह का है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देन यू हैव हियर C2 BE2 O2 और N2। ठीक है, दैट हैज ओनली 5 बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और दूसरा है यहाँ पे आपके पास CN पॉजिटिव, CN नेगेटिव, NO1 CN, व्हिच वन ऑफ दिस इज हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। एक सवाल है आपके पास व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कब करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए जब। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इस सवाल को आप लोग, इस सवाल को हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, वी विल डू दिस क्वेश्चन नाउ। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल बॉन्ड्स है ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए, बिकॉज सिंपल है मॉलिक्यूल्स ना। तो O2 का क्या है बॉन्ड ऑर्डर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। कितने बॉन्ड होते हैं O2 में, 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, N2 में कितने बॉन्ड होंगे, N2 में होंगे 3 बॉन्ड्स। ठीक है, N2 में क्या होंगे, 3 बॉन्ड्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। N2 आपने देख लिया। अब ध्यान रखिए आप, O2 में क्या होता है, 2 बॉन्ड होते हैं। O2 में आपने इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब O2 के केस को लेके देखिए आप, O2 नेगेटिव, आपने क्या डाला, इलेक्ट्रॉन डाला। इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल आप व्यू देख लीजिए कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, NO पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NO, बताइए। NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बताइए भाई, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NO में,
देखिए कोई भूल ही नहीं रहा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, क्या हो गया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन NO? 15 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, NO पॉजिटिव नहीं लेना है, न्यूट्रल स्पीशीज लेना है। क्या लेना है? न्यूट्रल स्पीशीज लेना है। NO का केस लेना है। NO के केस में कितने होंगे आपके पास? 15 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई केस 2 बनेगा वहां पे। केस 2 की वजह से क्या होगा? यू विल हैव द पाई 1 पहले, पाई वाले क्या होंगे? पहले आएंगे। अच्छा, अब NO पॉजिटिव में ऑक्सीजन जैसा बनेगा, ठीक है? NO पॉजिटिव का कैसा बनेगा? ऑक्सीजन जैसा बनेगा। अच्छा, NO पॉजिटिव में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बताइए? NO पॉजिटिव में आपके पास आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। सही है? यस और नो प्लीज टेल मी। हाँ जी बताएं। यस सर। NO पॉजिटिव में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास? वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स किसके केस में होता है? O2 कितना पॉजिटिव? O2 में होते हैं 16। O2 में कर दीजिए 2 पॉजिटिव, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ठीक है, O2 वगैरह का केस ना इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे दूसरे दूसरे वाले भी पता चल जाते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो O2 में आपके पास क्या 2 पॉजिटिव में कितने होता है? क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3 होता है। आज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? O2 2 पॉजिटिव में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3 होता है ना? देखिए, ठीक है, तो इसको इस तरह से देखना है आपको, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये केस याद रखने हैं सारे बस। ठीक है, तो पहला वाला भी ऑप्शन क्या है? गलत। अब आ जाइए आप CO के केस में और CN नेगेटिव के केस में। पहले देखते हैं CN। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ओहो, कितना टाइम लगेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CN में कितने हो जाएंगे? कार्बन में कितना होता है? 6। नाइट्रोजन में कितना होता है? 7। कितना हो गया? 13। लेस देन 14, यानी कि नाइट्रोजन वाला केस है। और N2 का कौन सा केस है? अच्छा, CN नेगेटिव है, राइट? CN नेगेटिव है, दैट इज 13 + 1 14 हो गया आपके पास। यानी CN नेगेटिव में आपके पास कैसा केस है? N2 वाला केस है ये? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। CN नेगेटिव में बिल्कुल N2 वाला केस है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाँ जी बताएं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही किसी को? अरे ये सवाल कर लें कम से कम। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन N2? 3 नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंपली सी बात ये है, हाउ मेनी बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन? 3 3 बॉन्ड्स ना, बस यही पूछ रहे थे। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, तो CN वाला कौन सा केस है? N2 वाला केस है। CN नेगेटिव में भी कितने क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं CO के केस में। CO में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बताइए? CO में आ जाएगा 6 + 8, कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो क्या होगा दोनों में। द बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो CN नेगेटिव एंड CO वाला बॉन्ड ऑर्डर सेम। प्लीज लिखिए इसको। ठीक है, तो प्लीज इस तरह से कीजिएगा आप लोग, है ना? आपको हमने 8 केसेस दे दिया। कितने केसेस दे दिए हमने? 8 केसेस दे दिए। आप निकालिए न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे आपको पता चलेगा वेदर इट इज गोइंग टू बी N2 वाला ऑर्बिटल डायग्राम या फिर O2 वाला ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, आपको पता चल गया N2 वाला ऑर्बिटल डायग्राम है या O2 वाला ऑर्बिटल डायग्राम है। उसके बाद आप क्या कीजिए? एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप प्लग इन कीजिए और देखिए एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब देखिए कि N2 के केस में N2 पॉजिटिव है, N2 नेगेटिव है या प्योर N2 है। ठीक है, अगर O2 वाला केस है तो O2 वाले में O2 2 पॉजिटिव है, O2 1 पॉजिटिव है, O2 है या O2 2 नेगेटिव है या O2 1 नेगेटिव। आज समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। अन्ना, हैदर, इरम, निम्रा, यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, प्लीज इस तरह से देखिएगा। अब इन 8 केस को आपको याद कर लेना पड़ेगा। N2 में होता है 3, N2 पॉजिटिव में होता है 2.5, इसमें भी होता है कितना? N2 नेगेटिव में भी कितना होता है? 2.5 होता है। O2 वाले केस में क्या कीजिए? O2 से आप पॉजिटिव जाइएगा तो फिर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नेगेटिव जाइएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीस क्वेश्चंस।
टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसमें से अगर कुछ नहीं हो तो फिर आज ही कीजिएगा इसको, क्योंकि कल तो टेस्ट होना है आपका। एंड प्लीज लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। अगर कोई सवाल आपसे ना हुआ तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। प्लीज इन सवालों को कर लीजिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी छोड़ना नहीं है।